of specific winds, especially in the coastal areas, because there we get to see the land and the sea next to each other. So let's see what is the concept of sea breeze. Now, during the daytime, what happens is the land gets heated up faster, especially near the equator. So in the equatorial regions, land gets heated up faster. So when I say land gets heated up faster, that means what happens? The air above the land is comparatively hotter when compared to the air which is above the sea. Right? Now this warm air, now when the air gets heated up, what happens to the air? The air expands, it becomes lighter, and therefore it tends to move up. So this warm air which is lighter tends to move up. Now when it moves up, what happens here? A vacuum is created, some free space is created because the air here went up. So therefore, what happens is this cold air from the sea comes towards the land and it occupies the space. And then this entire cycle happens. So the warm air which went up, it took up the space of the already existing cold air there. So that air again came here. So this air came here and again the cold air came here. So the same cold air got heated up in presence of, during the daytime, in presence of sunlight. The warm air rises up, again it moves towards the ocean, again it flows towards here, and the process continues. So, do you all remember it? Like we are studying in the chapter heat. ऐसा ही हम लोगों ने पढ़ा था. During the day, the air above the land heats up, it rises, and to take its place, the cold air from above the sea level, it goes towards the land. And this cycle is maintained. This is how the sea breeze flows throughout the day in the coastal areas. याद है सबको? Yes, sir. Yes, sir. So basically the warm air rises up, so it takes up the space for the cold air, and the cold air from the sea flows towards the land to take up the space which was emptied by the warm air. So as a result, what do you see? As a result, we see that a cool wind blows from the sea towards the land. So this is sea and towards land. So this breeze or this wind which blows from sea towards land during daytime is known as the sea breeze. So here also you see the same concept of warm air takes place, and this entire process of heat transfer is known as convection. And we have learned about convection while we were discussing about the lesson on heat. There we spoke about convection, and we have also discussed about sea breeze and land breeze. So just the reverse happens during night. So at night time, it is the cold air which flows from the land towards the sea, and that is why it is called land breeze. So land breeze would mean land to sea. Now during night time, the land will remain cold. Therefore, the air which is present above the sea will be comparatively hotter. So the warm air will rise up, and therefore the cold air from the land will move towards the ocean to take the space which was emptied by the warm air. So as a result, we will see that a cool breeze will blow from land towards sea during night time, and this is called land breeze. So this is the concept of land breeze and sea breeze. Thank you. Please visit www. So, did you all understand it? The phenomena behind land breeze, sea breeze, and the wind currents that flow. So why do you want to do here? Yes, sir. The noise is not coming. Yes, sir. It's not. What's not coming? ठीक है, तो एक काम करते हैं. जितने 66 लोग हैं मीटिंग में, सब लोग एक बार लाइन से बोलो, योर वॉइस इज नॉट कमिंग, योर वॉइस इज नॉट कमिंग. इस तरह से सब लोग बोलते हैं तो पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा, मजा आएगा.
ठीक है, वी ऑल विल एंजॉय। बाद में एक दूसरे से व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे कि देखो आज क्लास डिस्टर्ब कर रही है। आई केम टू नो दिस कि यहाँ स्टूडेंट्स प्लान करते हैं कि आओ हम लोग साथ में, सब लोग एक साथ बोलते हैं कि सर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। I can understand whether the voice is coming or not. It's clearly visible over here. कुछ फीचर्स होते हैं ये चेक करने के लिए कि मेरी आवाज क्लियरली जा रही है कि नहीं। Yashmit, can you hear me, Vita? Yes, sir. Sir, I can hear you. Is my voice very clear? Yes, sir. The voice is clear. ये यशवंत को जा रही है, पता नहीं बाकी लोगों को कैसे नहीं जा रही है। So these things happen. They are often planned and coordinated. ये थोड़ा सा अजीब लगता है। Being so little and no not planning such activity, थोड़ा सा ये अजीब लगता है। No, sir. आपकी voice तो आ रही है. ये पूछा नहीं, तो डोंट आस्क। कल हम लोगों ने इस चैप्टर में ये डिस्कशन किया था अबाउट दिस कैन एक्सपेरिमेंट। एंड सबसे पहले क्या करना था हमने, व्हाट वी डिड वाज कि वी टुक सम वाटर इन अ कैन, वी हीटेड इट, और जैसे ही उसे वो बॉईल होने लगा उसे तुरंत से कैंडल एक्सटिंग्विश करके उसके ऊपर लिड उसकी लगा दी कैन, एंड देन वी टुक दैट हॉट कैन into the wash basin। वहां पे हमने रनिंग वाटर उसके ऊपर फ्लो करने दिया। then we observed that the tin can got crushed, it got D-shaped। तो इसका जो रीजन समझ में आया कि ये प्रेशर के कारण था। the reason behind this was pressure। ठीक है, all these experiments show that the air exerts pressure। टायर साइकिल बाइसिकल के टायर के ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कशन करा था कि why extra air results in bursting of the tire tube, and अगर हवा एकदम नहीं है तो भी प्रॉब्लम होगी। So it is due to this pressure that the leaves of trees, banners or plants flutter। Now the word flutter means कि जैसे जब हवा चलती है आप देखते हैं कि फ्लैग हिल रहा है या आपकी जो ट्रीज की लीव्स है वो हिल रही है। So that is known as fluttering। The motion of the leaves or the flag caused due to the motion of wind is called flutter। When the wind is blowing, you can list some more experiences which show that the air has pressure। तो अब ये इन्होंने बात की थी। Let us now try to explain why the can gets distorted, जो D-shape हो जाता है। As the water is poured over the can, some steam in the can condenses into water, reducing the amount of air inside। The pressure of air inside the can decreases than the pressure exerted by the air from outside। As a result, the can gets compressed। अब इसको कैसे समझेंगे लोग, नहीं पता लगा। ये बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता कि क्यों प्रेशर। सो अंडरस्टैंड दिस कि सपोज एक जार है, ठीक है, या इसी कैन की बात है। सो व्हेन वी वर हीटिंग इट और इससे स्टीम निकल रहा था, सो दैट स्पेस अबव द वाटर लेवल, उस कैन के अंदर ही वो हिस्सा जहां पे थोड़ा सा खाली छोड़ रखा था हमने, उसके ऊपर की सारी एयर हट गई, क्योंकि उसकी जगह ले ली स्टीम ने। नाउ इफ यू सी एक छोटा सा क्राउडेड स्पेस है, पूरी तरह से फुल है, तो अनलेस एंड अनटिल हम किसी को बाहर नहीं निकालेंगे, हम एंटर नहीं कर पाएंगे। सो द स्टीम डज द सेम थिंग। अब जब हमने कहा वो वाटर बॉईल होने लगा, स्टीम आने लगा, उसके बाद देन वी ऑल ऑफ अ सडन क्लोज द लिड। उसमें लिखा हुआ है जल्दी से बंद करना है। क्यों लिखा हुआ है? जल्दी से नहीं बंद करेंगे तो उसमें एयर आ जाएगी, तो एयर नहीं आने देगा। और उसके बाद हमने उसको जब टाइटली बंद कर दिया ऐसे कि एयर ना आने पाए, अब हुआ क्या कि व्हेन वी क्लोज द लिड टाइटली एंड टुक इट अंडर द वाटर, तो अब बाहर का पानी तो ठंडा है, तो इसके ठंडे पानी के कांटेक्ट में आने से कैन ठंडा हुआ, और कैन के ठंडे होने से जो स्टीम था उस एम्प्टी स्पेस में वो कंडेंस होकर पानी बन गया। अब उससे क्या हुआ कि जगह बची।
नॉर्मल केस में क्या होता, अगर लिड ओपन होता, एयर उस जगह को ले लेती वापस, बट अभी क्या है, वो स्टीम तो कंडेंस हो गया और उस जगह पे कोई एंटर नहीं कर पाया, तो एक सॉर्ट ऑफ अ वैक्यूम क्रिएट हो और बाहर से एयर जो प्रेशर लगा रही थी उसको बैलेंस करने के लिए अंदर कुछ नहीं था, इस वजह से वो टिन कैन क्रश है। आई यू ऑल गेटिंग इट? टिन कैन क्रश हो रहा है तो मतलब जो फोर्स है वो बाहर से लग रहा है, एंड व्हाट इज देयर आउटसाइड, जो रनिंग वाटर है, टैप वाटर, उसके फोर्स से तो कैन क्रश, कैन जो है क्या नाम के, क्रश नहीं होगा आपका। तो इसीलिए जो एयर है, द एटमोस्फियर, द एयर दैट्स अराउंड अस, वो उस कैन को कंप्रेस कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है, रीशेप कर देता है। आई होप यू गॉट इट। Now let us move forward. High speed winds are accompanied by reduced air pressure. अब इसके लिए भी इन्होंने ये एक्टिविटी बहुत अच्छी सी बताई है, एक्टिविटी 8.2। कह रहे crumple a small piece of paper into a ball of size smaller than the mouth of an empty bottle. Hold the empty bottle on its side and place the paper ball just inside its mouth. Now try to blow on the ball to force it into the bottle. Try the activity with bottles of different sizes. और ये सबको करने को कहेंगे। अब ऐसे में क्या है कि जो पेपर का पीस है वो एकदम इस बॉटल के माउथ पे, इफ यू ऑल कैन सी, here this yellow piece, if you all can see it, it's at the mouth, and when you blow inside it, सारी एयर इसके ऊपर से निकल के बाकी बॉटल में चली जाए, so it becomes difficult to blow। हाँ, अगर ये पीस ऑफ पेपर कहीं बीच में होता तब आप ब्लो करते तो शायद वो मूव करता, बट बीइंग एट द माउथ ये हिल नहीं रहा। अब इसके बाकी चीजें देखेंगे क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। एक और एक्टिविटी इन्होंने सजेस्ट करी कि take two balloons of approximately equal size, put a little water into the balloons, blow up both the balloons and tie each one to a string, hang the balloons 8 to 10 centimeter apart on a cycle spoke or a stick। ठीक है, इन्होंने कहा 2 बलून्स लेते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के बाकी पूरी हवा भर देते और फिर इन्हें एक स्टिक पे स्ट्रेट जो हो उस पे बांध देते हैं। ठीक है, ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बलून्स। अब ये कह रहे हैं कि ये जो बीच की जगह है जहां पे ये इस कैरेक्टर का फेस आपको नजर आ रहा है, इस बीच में आपको हवा ब्लो करनी है। ठीक है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट व्हाट हैपेंस, होगा क्या, जब हम इसके बीच में ब्लो करेंगे, अगर वो पूरी तरह से खाली होता तो अलग अलग डायरेक्शन में दोनों चले जाते, बट अभी वाटर है तो बहुत कम मोशन है। एक और एक्टिविटी इन्होंने बताई, देखिए, कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट। अब होल्ड अ स्ट्रिप ऑफ पेपर लगभग 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड बिटवीन योर थंब एंड 4 फिंगर्स, जैसा कि इस फिगर में दिखा रखा है यहाँ पे। नाउ ब्लो ओवर द पेपर। अब इनका कहना है कि इसी पेपर के ऊपर आप थोड़ा सा ब्लो करेंगे तो पहेली थिंग्स दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप, गूजो थिंग्स दैट द स्ट्रिप विल बेंड डाउन। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन। ये एक्टिविटी इजी है, आप सब कर सकते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्टिविटी 8.2 जिसमें हमने एक बॉटल में पीस ऑफ पेपर को ब्लो करने की कोशिश की, एक्टिविटी 8.3 जिसमें बलून्स में थोड़ा सा पानी और बाकी हवा भर के उसे ब्लो किया, एंड दी एक्टिविटी 8.3 जहां पे पेपर की स्ट्रिप पे ब्लो करा। इसमें सब में हुआ क्या, वर दी ऑब्जर्वेशन अलोंग द लाइन्स यू थॉट, डू यू गेट द फीलिंग दैट द इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज अकम्पनीड बाय अ रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। When we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has higher speed. This decreases the pressure there. The air pressure inside the bottle is higher than near the mouth. The air inside the bottle pushes the ball out. अब ये कैसे हो रहा है, अगर आप इस स्पेस में ब्लो कर रहे हो, सपोज लुक एट द फिगर,
कैन यू सी दिस पिक्चर? Yes, sir. अब जब हमने ब्लो करा तो विंड कुछ इस डायरेक्शन में गई और पूरे बॉटल में स्प्रेड हो जाएगी, राइट? तो जब हम कुछ ब्लो करते हैं तो होता क्या है, हमारे माउथ की एयर उसके आगे की एयर को क्या करती है, पुश करती है. सो दैट पोर्शन ऑफ एयर इज व्हाट मूव्स फॉरवर्ड ना, वो अपने आगे धक्का देता है. दिस इज हाउ द विंड फ्लोज. ठीक है. तो अब है क्या कि इधर का जो एरिया होगा यहाँ पे जब हमने ब्लो करा, सो लो प्रेशर एरिया सॉर्ट ऑफ वाज क्रिएटेड. और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बॉल भी इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाए, पेपर का जो बॉल है, बट ये फ्लो नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ये जो एयर अंदर गई बॉटल के, इट कवर्ड इट्स डिस्टेंस एंड इट ऑल्सो केम, क्योंकि बॉटल में तो एक लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ एयर ही आ सकता है. जब हम एक्स्ट्रा एयर दे रहे हैं, व्हेन वी आर सप्लाइंग एक्स्ट्रा एयर, तो क्या होगा, या तो बॉटल बलून की तरफ फूलेगी, बट द बॉटल इज नॉट फ्लेक्सिबल. तो वो जो एक्स्ट्रा एयर है वो कहीं से तो एग्जिट करेगी ना. नाउ वी आर ब्लोइंग इन द अपर पोर्शन, सो ये जो लोअर पोर्शन है यहाँ वाला, इसी से वो एयर बाहर आ सकता है. तो अब जो ये पेपर बॉल आगे जाना चाहिए था, ये नहीं जा पाएगा. क्यों नहीं जा पाएगा? It won't be able to go forward because यही एयर घूम के इस पेपर बॉल को बाहर के डायरेक्शन में फोर्स कर, इस वजह से ये पेपर बॉल आगे नहीं मूव करता. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? ये बात समझ आ रही सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब Yes, sir. अगले एक्टिविटी में क्या होगा, अगर हम देखें तो यहां पे क्या होगा, कैन एनीवन एक्सप्लेन? रेज योर हैंड. जिसमें दो बलून्स, एक को हाफ फिल्ड, हाफ या सम पोर्शन ऑफ इट फिल्ड विथ वाटर एंड सम पोर्शन ऑफ इट फिल्ड विथ एयर, जिसको हमने सस्पेंड करा है वुडन स्टिक पे. इसमें क्या होगा, विल एनीवन लाइक एक्सप्लेन? यशमित? Sir, it is not moving because of the weight of the water. इट इज नॉट मूविंग बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द वाटर. ठीक है. कुछ और आंसर? विवेक? Sir, it will move slightly because the wind pressure will force it, and it is filled with water, so it will not move very much. एंड had it not been filled with water, उस केस में क्या होगा विवेक? Sir, it will blow. इट विल ब्लो, मतलब बोथ द बलून्स विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ना, अगर पानी ना भरा. Yes, sir. ठीक है. Yes. डू यू ऑल एग्री विद द ऑब्जर्वेशन? शाश्वत पांडे, yawning like a crocodile. ठीक है. तो अब है क्या, ये आपको समझ में आया. इन दी एक्टिविटी 8.3 यू सॉ दैट व्हेन यू ब्लू बिटवीन द बलून्स दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर. हाउ कुड दिस हैपन? ये आंसर में चाह रहा. दिस कुड हैपन इफ द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बलून्स वर समहाउ रिड्यूस्ड. The pressure outside the balloons would then push them towards each other. ये बात समझ आई सबको? Yes, sir. हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बलून्स दोनों अगर हम ब्लो करेंगे तो एक इधर जाएगा और दूसरा इधर जाएगा. ठीक है. बट ये कह रहे हैं कि बलून्स एक दूसरे की तरफ ब्लो हो जाए. क्यों? क्योंकि ये बलून्स के बीच में क्या है, एयर है. एंड व्हेन वी ब्लो दैट एयर अवे, तो ये जो सराउंडिंग यहाँ की जो एयर है इस बलून की और इस एरिया की, अब अनलेस एंड अनटिल न्यू एयर कम्स इन बिटवीन द टू बलून्स, ये जो इस तरफ की एयर है ये इसे पुश करेगी इनवर्ड्स. यही तो वो बताना चाह रहे हैं. आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. ठीक है.
और एक्टिविटी 8.4 में क्या हुआ? वी सॉ दैट व्हेन वी ब्लू ओवर द पेपर स्ट्रिप इट वेंट अपवर्ड्स। अगेन दिस कुड हैपन इफ द ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर अबव द स्ट्रिप। अब ये जो स्ट्रिप था पेपर का, हम देख रहे हैं कि अगर 20 सेंटीमीटर का पेपर स्ट्रिप है तो वो क्या होगा? नीचे की तरफ झुक जाएगा, लटक जाएगा जिसे। बट व्हेन वी ब्लू तो वो सीधा हो गया। क्यों हो गया? ये स्ट्रिप लटक क्यों रहा? लाइक इफ यू ऑल कैन सी, अगर इस सपोज दिस इज अ फोल्डर, अगर मैंने इसे आगे से पकड़ा हुआ है तो ठीक है, बट इफ आई ट्राई टू होल्ड इट फ्रॉम द एज, ये क्या हो रहा है? बेंड हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि ऊपर का एयर का जो प्रेशर है वो इसे नीचे बेंड कर रहा है, ये उसका वेट नहीं लेगा। सेम विद द पेपर स्ट्रिप। नाउ व्हेन वी ब्लू अंडर द पेपर स्ट्रिप तो क्या हुआ? उस एयर कॉलम के वेट को बैलेंस करने के लिए नीचे से फोर्स मिला, दैट हेल्प द पेपर टू राइज। ये बात समझ में आ रही है? तुम लोगों ने वो एक देखा होगा वीडियो जिसमें कि एक सपोज एक पोल है और उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही आपका ग्राउंड पे है, बाकी हिस्सा हवा में, ठीक है। सो इफ वी वॉक इनटू दैट पोर्शन विच इज हैंगिंग, तो बहुत ज्यादा वेट होगा तो वो क्या होता है? नीचे चला जाता है। या फिर स्विमिंग पूल में जो पोल होता है जिसके ऊपर हम जंप करके अल्टीमेटली कूदते हैं, सो उसमें भी आपने क्या देखा होगा? जैसे जैसे हम उस पर आगे जाते हैं क्या होता है? उस पोल का हिस्सा झुकता जाता है। गॉट इट? ये बात सबने देखी है? यस सर। ठीक है, तो वो क्यों झुकता है? बिकॉज ऑफ आवर बॉडी वेट। तो अब वो तो वुड का है, ठीक है, बट इन केस ऑफ अ पीस ऑफ पेपर क्या होता है? पेपर इज मच सॉफ्टर कंपेयर टू वुड, तो वो हवा के वेट से ही झुक जाता है। नाउ व्हेन वी ब्लो अंडर इट, उस हवा के वेट को बैलेंस करने के लिए हमारे माउथ से हवा आ रही है, सो दैट इज व्हाट हेल्प्स द पेपर टू राइज। बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, सो दैट वाज विद द एक्टिविटी 8.4। अब ये सारी बातों से कंक्लूजन क्या निकला? व्हाट आर वी लर्निंग फ्रॉम दैट? We see that the increased wind speed is indeed accompanied by a reduced air pressure. ये बात समझ आई? अगर विंड स्पीड बढ़ जाएगा, या मान लो सपोज कहीं से हवा आई, ठीक है, द मॉनसून विंड्स दे केम एंड दे ब्लू अप द एयर अबव अस इन द प्लेन्स। जो हमारे स्काईज पे हवा है, ये मॉनसून की विंड्स ने इस हवा को ब्लो कर लेंगे अपने साथ। तो हमारे जो स्काईज है प्लेन्स के ऊपर है, यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो एयर थी वो तो कहीं और चली गई फ्लो करके। सो टू फिल अप दिस स्पेस, एयर फ्रॉम द नेबरिंग रीजन्स वुड कम रशिंग इन टू बैलेंस द प्रेशर। ये बात समझ आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, यही होता है आपका हाई प्रेशर जोन और लो प्रेशर जोन। यस विवेक, यू हैव रेज्ड योर हैंड। Sir, can you explain it again, the monsoon? सिर्फ मॉनसून की ही बात नहीं है, आप ऐसे समझो। कैन यू सी द स्क्रीन? सपोज दिस इज अ स्पेस ऑफ लैंड, ठीक है, दिस इज अ स्पेस ऑफ लैंड। अब इसके ऊपर यहाँ पे हम सब लोग जान रहे हैं क्या है? हवा है, ठीक। नाउ इफ ब्रीज और विंड फ्रॉम सम रीजन कम्स हियर, ठीक है, फ्रॉम सम रीजन कम्स हियर या सम डायरेक्शन कम्स हियर, तो वो इस ये जो एरिया है इसकी विंड को अपने साथ फ्लो करा ले जाएंगे। यस और नो? यस सर। ठीक है, अब ये जो स्पेस है, दिस स्पेस, यहाँ पे जो एयर थी, नाउ दैट हैज फ्लोन विद दिस विंड, ठीक है। तो अब ये स्पेस थोड़ा खाली हो जाएगा, एकदम वैक्यूम नहीं बन जाएगा, बट हाँ कंपैरेटिवली खाली हो जाएगा पहले के तुलना में, कंपेयर टू द प्रीवियस स्टेट। यस सर। ठीक है, now this sort of an empty space that was created because of these winds, ये क्या होगा? To fill in this space, air from the neighboring regions would come in flowing। ये बात समझ आ रही है सबको? इस जगह को भरने के लिए बाकी डायरेक्शन से एयर इधर ही आ जाएगी।
ये बात समझ आ रही है सबको? अगर ये नहीं समझ आएगा तो फिर साइक्लोन नहीं समझ आएगा। बात समझ आई? और ये स्टार्ट कहां से होता है अल्टीमेटली? इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द इक्वेटर। व्हेन द एयर above the skies in the equatorial region gets heated and starts flowing towards the poles, तो उसकी जगह लेने के लिए cold air from the poles starts to come inwards, ठीक है? तो अब ये जो इक्वेटर की गर्म हवा है, अब ये जहां जहां से फ्लो करते हुए जाएगी उस रीजन के ऊपर की हवा को अपने साथ ले जाएगी, तो उस पूरे रीजन में क्या होगा? एक खाली जगह सी बनेगी, ठीक है? उस खाली जगह को फिल करने के लिए कोल्ड एयर फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस वुड कम इन टू ऑक्यूपाई दैट स्पेस। ये बात समझ आ रही है सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Are you all getting it? So अगर इन केस यही प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, द हायर द प्रेशर डिफरेंस, उतनी ही जल्दी नेबरिंग डायरेक्शन से विंड उस जगह को भरने के लिए फ्लो करने लगेगी। सो हायर द डिफरेंस इन प्रेशर मोर विल बी द विंड स्पीड। और अगर यही विंड स्पीड एक डेंजर मार्क को क्रॉस कर जाती है, देन वी एक्सपीरियंस स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ये बात समझ आई सबको? Yes. ठीक है, इसी को आगे देखते हैं। Yes, sir. Can you imagine what would happen if high speed winds blew over the roofs of buildings? If the roofs were weak, they could be lifted and blown away. ठीक है, let us try to understand how winds are produced, how they bring rain and how they can be destructive. You already know that when air moves, it is called wind. ठीक है, इतना तो हम सब लोगों को पता है. Now, air moves from the region where the air pressure is high to the region where the pressure is low. The greater the difference in pressure, the faster the air moves. But how are the pressure differences created in nature? Is the difference in temperature involved? The following activities will help. तो ये जो activities है 8.5, 8.6, ये क्या explain करेंगे कि कैसे एक लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है। बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल कि कैसे क्रिएट होता है, वो एक वीडियो दिखा, ठीक है? ये बात समझ आ रही है? देखो वहीं पे आ रहा है, विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। यही अभी हम लोगों ने वीडियो में देखा था, Yes, sir. ठीक है? सो दिस क्वेश्चन विल बी कवरिंग टुमारो। आज का टाइम यही खत्म हो रहा है। वी weren't able to cover much of the chapter.